وسیم بھائی کے جگر پارے نور عین دل کے ٹکڑے عالی جناب کلیم صاحب کی شادی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اب ٹائم چونکہ اتنا ہوا کہ دولہا میاں کو بھی جانا ہی پڑے گا۔ اس دور پرفتن میں بڑے جگر گردے کا کام کیا انہوں نے، اور یہ باقاعدہ مجاہدانہ کردار ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ ناچ گانے تماشوں کو پسند کرتے ہوں، خاص کر شادی اور خوشیوں کے موقع پر، آپ نے نبی کا ذکر سنا، تقریر سنی، نعتیں سنی، اور سب کو جواب دے دیا کہ محفل خوشی کی ہو، موقع خوشی کا ہو یا غم کا ہو، سب سے افضل اپنے نبی کا ذکر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سب سے اچھا اپنے نبی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر ہوگا، رحمت مصطفیٰ متوجہ ہوگی۔ نبی کا ذکر ہوگا، نبی کا فیضان آئے گا۔ نبی کا ذکر ہوگا، نکاح میں برکتیں ہوں گی۔ نبی کا ذکر ہوگا تو اللہ گھروں کو، آنگنوں کو سونا نہیں چھوڑے گا، ان میں خوشیاں اور پھول پیدا فرمائے گا۔ جی بے شک۔ یہ برکتیں نکاح کی ہیں، اور نکاح میں ہونے والے ذکر مصطفیٰ کی ہے۔ ناچ گانوں تماشوں سے شیطانوں کو بلا لیا جاتا ہے، رات بھر کودتے پھاندتے ہیں، نحوستیں بستی پہ برسا کے چلے جاتے ہیں، بڑا برا ہوتا ہے۔ میں مبارکبادی ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ خاص کر پروگرام والوں کو، وسیم بھائی کو، ان کے بیٹوں کو اور آپ تمامی حضرات کو پیش کر دوں کہ اللہ تم سب کو یہ پروگرام مبارک فرمائے، آمین۔ اور تمام شادیوں کے لیے یہ پروگرام ایک مثال بن جائے۔ بہت عظیم شاعر کو آپ نے سنا، یہ چھوٹا موٹا شاعر نہیں، بہت عظیم شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ اب آپ کے چونکہ قریب کے ہوں تو آپ سمجھیں کہ گھر کی مرغی دال برابر ہو، جی ہے نا؟ ہاں، بڑی دور دور تک جاتے ہیں، اور پورے پروگرام کی کامیابی کا صحرا انہی کے ماتھے پہ سجتا ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں عقیل الرحمان صاحب۔ آج سے تھوڑی، میں تو بچپن سے جانتا ہوں، جب یہ بزرگ تھے میرا بچپنا تھا تب بھی میں جانتا تھا۔ اس میدان میں تو بڑا بعد میں آیا، ایک زمانے تک پڑھایا۔ عقیل الرحمان صاحب اس زمانے میں بھی نعت خوانی کرتے تھے جب ہم پڑھا کرتے تھے۔ سفیدی یہ عمر کی زیادتی کی دلیل نہیں ہوتی، آج کل تو بچے سفید ہو رہے ہیں۔ جی۔ کبھی اس چکر میں ہو کہ عقیل الرحمان صاحب مکمل سیاہ ہیں اور آپ پورے سفید ہیں، ہے نا؟ تو اس سے اندازہ عمر کی درازگی کا نہ لگائیں، ہے نا؟ ہاں، بڑے یہی ہیں، ہاں، اور بہت بڑے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، بڑے بھائی، بہت اچھا پڑھا۔ آج تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھا، مگر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو گھنٹہ پڑھیں، 2 گھنٹہ پڑھیں، یہ مسلسل کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں۔ آج پہلی بار بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے کہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے بھی قریب ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے کیا۔ حضرت قاری عابی صاحب کو آپ نے سنا، مفتی مرشد صاحب کو آپ نے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھے بیان ہوئے۔ حضرت مولانا حافظ و قاری ناصر صاحب کو آپ نے سنا، تو بڑے اچھے اچھے بیان ہو گئے۔ اب اس وقت میں مجھے کیسا سنو گے بھائی، میں تو نہیں سمجھتا کیا سناؤں آپ کو۔ اب شادی سناؤں، خوشی سناؤں، یا شادی کے بعد کے معاملات سناؤں؟ ابھی نکاح ہوا تو نہیں ہے، نکاح کب ہوگا؟ کل۔ اب کل کہاں ہے، اب تو آج ہی ہوگا یار۔ جی۔ جب تاریخ بدل کے نمبر دو گے تو نکاح کل کہاں ہوگا؟ 8 میں بلا کے 9 میں نمبر دے رہے ہو۔
बगरौआ है, भमरौआ, माशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा गाँव है। आया था मैं एक मर्तबा और आया था, मुझे याद है, बड़ी जगह में प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त भी नंबर ऐसी आया था। टाइम का ख्याल थोड़ी रखा जाता, हमारे लिए तो वही वक्त है जब सब बूढ़े हो जाएं तो हजरत बैठ जाओ। हाँ, मगर ये तो माशाअल्लाह मजमा बड़ा जवान है जी। तो शादी फिर शादी पे ही तकरीर कर दें या कुछ और सुना दें? बताओ, शादी सुना दूं? शादी सुना दें, है ना? कुरान की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में। मैंने एक हदीस सुनी, अभी पढ़ रहे थे कारी नासिर साहब, और बाकायदा कारी आबी साहब ने भी काफ़ी वसी तकरीर की, माशाअल्लाह, दिलों को खुश कर देने वाली। वो भी ताल्लुक़ शादी का था, है ना? मगर मैं कुछ अलग अंदाज में, मेरी जैसी आदत है, मैं कुरान सुनाऊँ, हदीस सुनाऊँ, है ना? फिर शादी पे बोलता जाऊँ, उसी पे तफसीर कर दूँ। हाँ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर रहमतु व रिज़वान ने एक कसीदा बड़ा प्यारा कहा, उसमें शादी का जिक्र किया है। कर दूं जिक्र? शादी का जिक्र है उसमें, शादी का जिक्र भी है, दूल्हा का जिक्र भी है, दोनों का जिक्र है। अब चूंकि मैं ज़्यादातर कलाम आला हज़रत ही के सुनाता हूँ, पढ़ता भी हूँ, कभी कोई शेर पढ़ दूँ, उसकी तशरीह कर दूँ या तफसीर कर दूँ, तो वो आला हज़रत ही का होता है ज़्यादातर। आला हज़रत के अशार बड़े माना खेज़ होते हैं, इसलिए आला हज़रत का वो मैं सुना दूँ जिसमें खुशी का जिक्र है। चूँकि वसीम भाई ने बड़ी खूबसूरत खुशी की है कि यहाँ से वहाँ तक पंडाल इतना खूबसूरत लगाया, इतनी कुर्सियाँ, इतने बड़े मजमे के बैठने का इंतज़ाम किया, खिलाया पिलाया, ये खुशी के लिए किया, माइक मंगाया खुशी के लिए किया, उलमा को बुलाया, शायर साहब को बुलाया, ये सब खुशी के लिए। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जब मेराज का दूल्हा बनाया तो कैसी खुशी की बता दूँ? सुभान अल्लाह बोलो यार भाई, सुस्ती से सुनोगे तो फिर कैसे सुना है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, मैं ऐसी सुनाऊंगा अकील भाई की तरह नहीं, बस सीधा सीधा सुनते रहो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, सुभान अल्लाह। नए निराले, नए दोनों लफ्ज याद रखना, नए निराले। तरब का माना खुशी है, मैं खुशी बोले देता हूँ। नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो, अरब के मेहमान के लिए थे। हाँ, किसके लिए थे? नए निराले, नए निराले। जरा सुनिएगा गौर से, नए निराले पर गौर कर लो। शामियाना लगाया वसीम भाई ने, नया तो हो सकता है मगर निराला कहाँ से लाओगे? नहीं बोलोगे? हैं? ये माइक नया हो सकता है मगर निराला कहाँ से लाओगे? ये लाइट जो इन्होंने की, जो लाइटिंग की है, जो झालर वगैरह लगाई, नहीं हो सकती है मगर निराली कहाँ से लाओगे? परवरदिगार आलम ने तो अपने महबूब को जब दूल्हा बनाया तो वहाँ सामान रब ने जो मुहैया फरमाए वो नए भी हैं, निराले भी हैं। जी बोलो, कैसे हैं? नए भी हैं और निराले भी हैं। निराले भी हैं, वहाँ नए भी सामान और निराले भी सामान। पता ये चला कि खुशी के मौके पर नए सामान या निराले सामान, खुशी के सामान लगाए जाते हैं। और खुशी रब ने क्या की थी, सुनिएगा जरा गौर से, तवज्जो है। मुझे देख लो बुजुर्गों, इधर नौजवान बच्चे, इन्हें भी सुना रहा हूँ। शादी हो तो ऐसी खुशी हो। परवरदिगार आलम ने खुशी ऐसी की कि आसमान से लेके जमीन तक नूर के शामियाने लगाए। हमने कपड़े का लगाया, रब ने नूर के शामियाने लगाए। कहाँ से? आसमानों से लेके जमीन तक नूर के शामियाने थे। और बारात में भेजा भी जिब्रील को था, हजरत मीकाईल को, हजरत इसराफील को, है इन फरिश्तों को भेजा। और हर एक फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते
बाराती बन के आए थे आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया गया। तवज्जो रखें, गौर से सुने, ये ऐसे नए निराले सामान थे खुशी के परवरदिगार आलम ने मुहैया फरमाए। ये खुशी थी। आला हजरत फरमाते, सुनो शेर भी सुनो, फिर तकरीर में शादी पे ही कर रहा हूँ। आला हजरत ने इसमें शादी का जिक्र किया। आला हजरत फरमाते, बहार है शादियाँ मुबारक, शादियाँ मुबारक। आला हजरत फरमाते, बहार है, जब शादी होती है तभी बहारें आती हैं, जब शादी होती है तभी खुशियाँ होती हैं, जब शादियाँ होती हैं तभी आंगन, हमारे आंगनों में हमारे बच्चे हंसते खेलते नजर आते हैं, जब शादियाँ होती हैं तभी चमन हरा भरा होता है, जब शादियाँ होती हैं तभी हमारे आंगनों में एक फूल खिलते नजर आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक। और खुशी का आलम ये था, ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुराना दिल का बोलते थे, ये घुराना दिल का बोलते थे। खुशी ये थी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे होंगे शेर, समझ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे समझ में। आराम से बता दूं, वहां फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूम। सुभान अल्लाह। मत बोलो सुभान अल्लाह। अगर जितना कम बोलोगे तकरीर उतनी लंबी कर दूंगा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। सुनो, वहां फलक पर, वहां फलक पर यहां ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, इधर से नफहात उठ रहे थे। तवज्जो रखो, इधर उधर बहुत देख रहे हो आप यार। यानी इस वक्त परेशानी ये होती है कि जगाना भी है फिर सुनाना भी है। आला हजरत फरमाते हैं, हमें आपको अगर दूल्हा बनाए, कलीम भाई को अगर दूल्हा बनाएंगे तो कौन बनाएंगे दूल्हा? भाई बना देंगे, बहनें बना देंगी, सब मिल के उलमा मौलाना हैं, उनके भाई के उस्ताद जो हाफिज साहब है वो बना देंगे, आप मिल के बना देंगे, मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना क्या नाम है इनका, मौलाना जमील साहब, मौलाना जमील साहब माशाअल्लाह, ये दूल्हा बना देंगे, पगड़ी बांध देंगे, बहनें बना देंगी दूल्हा। दूल्हा हम और आप बनाते हैं, मगर आमिना के लाल को जब दूल्हा बनाया जाता है तो दूल्हा बनाने कौन आता है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी, अब सुन लो जरा जल्दी जल्दी, जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, फरिश्ते, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, आमिना के लाल को फरिश्ते दूल्हा बना रहे हैं। और जब दूल्हा दूल्हा बनता है, सुने जरा, बहनें होंगी, माएँ होंगी, वो गौर से सुने, आप भी सुने, जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है तो होता क्या है? सर पे इमामा होगा, माथे पे सेहरा होगा, गले में फूलों के हार होंगे, नजारा बड़ा खूबसूरत होगा, दूल्हा बड़ा प्यारा लगा है, बहनें देखेंगी दूल्हा बड़ा प्यारा है, माँ देखेगी मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत नजारा है। आज देखने के लायक है बेटे का चेहरा, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। माँ के दिल में एक उमंग उठती है और माँ सोचती है कि आज मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के चेहरे पर किसी की नजरें बद पड़ जाए, बुरी नजर पड़ जाए, इसलिए चलो घर के बाहर निकलो, अपने बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। माँ आती है, अपने लाल के चेहरे की खैरात उतार रही है, बोलो निछावर कर रही है कि नहीं? चेहरे के इर्द गिर्द पैसा माँ ने घुमाया, पल्लिया में डाल दिया, खैरात चेहरे की उतार दी। बहन ने देखा मेरा भाई दूल्हा बना है, अपने भाई के चेहरे की खैरात उतार दो, बहनें खैरात उतार रही है। फूफी ने देखा भतीजे के चेहरे की खैरात उतार दो, उसने निछावर कर ली है। खालाए माम मुमानिया ये सब
निछावर करती हैं, यहाँ तक कि अगर दादी जिंदा होती है तो वो दादी भी आती है, किसी तरह आए अपने पोते के चेहरे की निछावर कर दो, उतार दो खैरात चेहरे की। फूफिया उतार रही है, दादी उतार रही है, माँ खैरात उतार रही है, सबके सब खैरात उतार रहे हैं। अब सुनो जरा गौर से, अगर दूल्हा हम तुम बने, हमारा भाई कलीम बने, आप बने, मौलाना नासिर बने या कारी आबिद बने, कोई अगर दूल्हा बनेगा, खैरात पैसों की उतारी जाएगी, बांटा पैसा जाएगा। मगर दूल्हा अगर आमिना का लाल बनाया जाए तो खैरात पैसों की नहीं, अमा दूल्हा नूर वाला तो खैरात भी नूर की उतारी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जली साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी काय की नूर की उतरेगी। अब खैरात उतारेगा कौन, जरा सुने। आला हजरत जिक्र फरमाते हैं, आला हजरत ने गोशे को कौन से को छोड़ा है, जिस तरह दूल्हा बनता है हर गोशे को लिया। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका, ये उतार रुख का माना होता है चेहरा, उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। और अपने यहाँ खैरात तो खलीफा ले जाता है, खाना बनाने वाला ले जाता है, मगर वहां खैरात लेने कौन आया। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज, चांद सूरज, चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। ये चांद सूरज मचल मचल के, ये चांद सूरज मचल मचल के जभी की खैरात मांगते थे। और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। दूल्हा तो नहाता भी है जी, दूल्हा बनने से पहले नहाएगा, नए कपड़े पहनेगा, जब नहाएगा जिस्म से पानी टच होगा, जमीन पर गिरेगा, नालियों में बहेगा। ये हमारा आपका दूल्हा है कि जिसके जिस्म से टच होने वाला पानी गिरता है जमीन पर, नालियों में बह जाता है। मगर आमिना का लाल जब दूल्हा बनता है, उसके जिस्म से टच होने वाला पानी रब जमीन पर गिरने नहीं देता, कटोरों का सितारों का ताज बना देता है, सितारों का ताज बना देता है। आला हजरत फरमाते हैं कि वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। भाई मुझे घूर के ही सुनोगे, मेरी बारी को नहीं बोलोगे, शायर साहब की बारी को बोलोगे सुभान अल्लाह। मैं नारा नहीं लगवाऊंगा आपसे, सिर्फ सुभान अल्लाह बोल के सुनते रहो जरा जीते जागते माहौल में। आला हजरत अजीमुल बरकत आगे फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, सुभान का धोवन, तलवों का, तलवों का, बचा जो तलवों का उनके धोवन। दूल्हा है कितना प्यारा दूल्हा है, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, सुभान अल्लाह। बना वो जन्नत का रंग रोगन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन। सुभान अल्लाह। फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे, जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सुभान। तवज्जो है, समझ में आ रहा है? अब शेर तो समझ में आ गए, शेर जैसे भी समझे आपने समझ लिए। जो वहाँ हम भी होते खाक गुलशन, गुलशन की मिट्टी बन के ही कम से कम मौजूद होते, नबी के तलवों से मिलने का मौका मिल जाता। और जब तलवों से मिलते तो नबी का उतरन हमें भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। मगर क्या करें, तवज्जो जरा चाहूँगा गौर से मेरी तरफ देख लें। मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन जी है? मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। शादी है ना, अब शादी को जरा गौर से सुनना, मैं बता रहा हूँ शादी क्या चीज है। शादी जो कर रहे हैं वसीम भाई अपने बेटे की, आप भी अपने बेटों और बेटियों की शादियां करते हो। क्या है शादी, किस चीज का नाम है शादी? परवरदिगार आलम ने, सुनिएगा जरा, अब कुरान से मैं साबित कर रहा हूँ कि शादी क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम
من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہاری جانوں میں سے. تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہاری جانوں میں سے. نوجوانوں تم سن لو, جوڑا تو تمہارا بھی ہوگا, جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا. کس نے بنایا جوڑا؟ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ شادی سنا رہا ہوں, شادی سمجھ لو. اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا. کیا بنایا بولو؟ جوڑا بنایا. اور یہ کیا ہے جوڑا بننا؟ رب کی قدرت نہیں ہے قدرت جی. اس کی مثال میں دیتا ہوں. پروردگار عالم ایک ہی زمین سے کیسے رنگ برنگے پھول کھلاتا ہے, نہیں کھلاتا ہے؟ جی. یہی زمین ہے. اسی زمین میں آپ نے دانا ڈالا, بیج ڈالا, اسی پہ گلاب بھی کھلا, بیلا بھی, گیندا بھی, سفید پھول بھی, پیلا پھول بھی, رنگ برنگے پھول, رنگ برنگے پھل ایک ہی زمین سے اگ رہے ہیں. ایک ماں کا پیٹ ہے, اسی پیٹ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے اور اسی پیٹ سے لڑکی بھی پیدا ہو رہی ہے. بولو ایک زمین سے رنگ ہار رنگ کے پھول یہ کس نے کھلائے؟ رب نے, پروردگار عالم نے کھلائے. تو یہ رب کی قدرت کا جلوہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا. کیا بنایا؟ جوڑا. انسانوں میں بھی جوڑا. اب میں جوڑا بتا دوں, جوڑا بنایا. اللہ نے تو ہر چیز کا جوڑا بنایا, ہر شے کا جوڑا بنایا. جی. مثالیں دیکھ لو آپ, جانوروں میں بھی جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ جی. بولتے رہو ذرا. میل فیمیل آپ کو جانوروں میں بھی ملے گا, آپ کو نباتات میں بھی ملے گا, آپ کو جمادات میں بھی ملے گا. ہر شے کا جوڑا بنایا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, قرآن میں رب فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا رب؟ تو نے جوڑا. اللہ فرماتا ہے